Hello student, good morning all of you. Today in this video we are going to discuss about the laws of motion. Previously we were discussing some topics regarding the laws of motion. We have discussed the contact forces, non-contact forces, and we have also just described the criteria behind that. So today in this video we are going to discuss about some laws, okay, regarding the laws of motion. So regarding this, the first one is the Newton first law of motion, okay. Newton's first law of motion. Newton's first law of motion. Dear student, Newton first law of motion. In order to just understand this topic, we have to first, I am creating a first just one condition in front of you, that suppose a wheel is there, okay, a wheel is there, and suppose I am applying a force here, and I am making all the surfaces behind the contact is smooth, perfectly smooth, okay. I mean, this is slippery, okay, this surface is slippery, and I'm also just doing here taking some grease over the green of the wheel, okay, here, okay. I'm just oil, with the help of oil and grease I am just using on the grill of the green of the just wheel, okay. What will happen if I'm applying the force, if the surface is also smoothly, perfectly smooth, there is no any friction, and it is covered with some oil or some slippery surfaces I'm putting on the just rim of the wheel, what will happen? It will not stop it anywhere, okay. If the friction, if all the external unbalanced force just removed on its surface, I just want to just make you understand that if anybody is just lying on the surface and the surface is perfectly smooth, there is no any friction force or any other force, unbalanced external force, then what will happen? If a force is applied on a just body, it will remain in that just motion, okay, it will not stop it anywhere if all the unbalanced external unbalanced force is removed from the nature. Means a condition is here, arises here, okay. That is when a body, suppose it is a body, suppose a body just keeping here, it is rest position, it will remain at rest, it will remain at rest. If a body is lying on the table, it will remain in the state of rest position, and if a body is in motion, then it will continue in its motion until or unless some external unbalanced force acts on this bodies to change the state of rest and to change the state of motion. And this is what Newton states that, okay. So according to the Newton's first law of motion, a body is in, if the body is in a state of rest, it will remain at rest. If the body is in motion, it will remain or continue in its motion until or unless some external unbalanced force acts on the body to change the state of rest and to change the state of motion. This is what Newton's first law of motion, okay. So this is what about the Newton's first law of motion. And I am also writing here that if a body is in rest condition, it will remain at rest condition. Even if body is in motion, it will continue in its motion until or unless some unbalanced external force acts on it to change the state of rest or a motion, okay. Just listen it carefully and understand, okay. And this give rise one another condition, that is
inertia. Inertia. Okay. What is inertia? Inertia is that state of any body which resists the change in its state of rest or a motion. That is, if a body is in rest condition, it will always try to be in rest condition. If a body is in motion, it will continue in its motion. It doesn't want to change its state. When it is resisting the state of rest or a motion. Okay, beta. Or we can say that it is a tendency of a body to continue in the state of rest or of uniform motion in a straight line even when some external unbalanced force acts on it is called inertia. Okay. Dear student, a little bit I am using here in Hindi just you understand it that बेटे लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है. लॉ ऑफ इनर्शिया को एक तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि एक जो आलसपन होता है, आलसीपन है ना, किसी बॉडी में आलसीपन, यदि वह रेस्ट में विरामावस्था में रहना चाहती है तो सदैव विरामावस्था में रहना चाहेगी. यदि उसमें कुछ मूवमेंट करा दिया गया, यदि वह मोशन में हो जाएगी तो कंटिन्यू वो सोचेगी कि मोशन में ही रहें. ठीक है. तो ये जो आलसीपन है किसी भी बॉडी का, इसे क्या कहेंगे? इनर्शिया कहेंगे. ठीक है. जैसे कि कोई बॉडी है तो रेस्ट में है तो वो सोचेगी हमेशा रेस्ट में रहें, उसमें कोई चेंज ना हो, रेजिस्टिंग द चेंज. ओके. इन मोशन और इन रेस्ट. जैसे रेस्ट में रहना चाहेगी तो सोचेगी हमेशा रेस्ट में रहें, मोशन में रहना चाहेगी तो सोचेगी हमेशा मोशन में रहें. और यही होता है इनर्शिया. ओके. सो जैसे कि हमने एक पोस्ट कार्ड का लिया था, आप लोगों ने किया भी होगा कि एक ग्लास है, ग्लास के ऊपर आप लोग एक पोस्ट कार्ड रख दें. सपोज़ ये ग्लास है, सपोज ये ग्लास है, इसके ऊपर एक पोस्ट कार्ड आप लोग रख दें और इसके ऊपर एक कॉइन रख दें. ठीक है. यदि आप लोग यहाँ से फ्लिक करेंगे इस पर केवल पोस्ट कार्ड पे, तो ये जो कॉइन है वो कहाँ गिरेगा? नीचे ग्लास में गिरेगा. क्यों? क्योंकि ये जो कॉइन है, ठीक है, ये रेस्ट कंडीशन में है. ठीक है. और ये बॉडी जो भी रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहेगी. ये अपने साथ कुछ छेड़छाड़ महसूस नहीं करेगी. मतलब ये रेस्ट में है तो सोचेगी हमेशा रेस्ट में रहें, और किसी भी तरह का जो अनबैलेंस्ड फोर्स इस पर लगाया जा रहा है उसको वो रेजिस्ट करेगी. ठीक है. इसलिए क्या हुआ कि जब हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, जब इस पोस्ट कार्ड को फ्लिक किया जा रहा है तो इस कंडीशन में ये कॉइन रेस्ट में रहेगी तो रेस्ट में रहना चाहेगी. इसलिए ये इसके साथ नहीं गई, इसके साथ फ्लिक नहीं हो रही है, ये सीधे ग्लास के अंदर चली आई ये कॉइन. ओके. एंड दिस इज़ व्हाट द एग्जाम्पल ऑफ inertia. Dear student, inertia are of two kinds. Okay. The first one is the inertia of motion. Okay. This is the inertia of motion. Inertia of motion. Inertia of rest. We can say that inertia of rest. Inertia of rest. And the second one is the inertia of motion. Inertia of motion. Two kinds of there. Inertia of rest, inertia of motion. ठीक है. यानी जो बॉडी रेस्ट में रहना चाहेगी वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, जो बॉडी मोशन में रहना चाहेगी वो मोशन में ही रहना चाहेगी. अपने साथ कोई चेंज रेजिस्ट नहीं करना चाहिए, मतलब अपने साथ कुछ परिवर्तन नहीं करना चाहेगी. ठीक है बेटे. इस इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन. ठीक है. जैसे कि हम मान लेते हैं कि जब यात्री जब बस में बैठे होते हैं, वो रेस्ट में होते हैं और अचानक बस स्टार्ट हो जाती है तो क्या होता है? यात्री पीछे की तरफ बैकवर्ड जर्क हो जाते हैं. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो बस है अभी रेस्ट में है तो उसमें बैठा हुआ यात्री भी अभी रेस्ट कंडीशन में है, लेकिन जो ही बस स्टार्ट होती है तो होता क्या है कि जो इनर पार्ट है बॉडी का, जैसे पैर हो गया वो नीचे टच है
बस के कांटेक्ट में है, तो वो अल्टीमेटली जस्ट वो मोशन में आ जाता है जब ही बस चलना शुरू करती है। और लेकिन ऊपर का जो पार्ट है वो क्या रहता है, वो तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, वो अपने साथ कुछ चेंज नहीं महसूस करेगा। तो जब ही वो जिस रेस्ट में है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि ड्यू टू इनर्शिया वह पीछे जर्क हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इनर्शिया ऑफ जस्ट रेस्ट में हम लोग कुछ और भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कोई कारपेट है, कोई दरी है, यदि उसको ज़ोर से पीटा जाए किसी लकड़ी से या किसी माध्यम से, तो क्या होता है उसमें, उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स बैठे होते हैं, ठीक है, उनमें कुछ परिवर्तन होता है। डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं कारपेट को तो हम मोशन में ला रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो बैठा डस्ट पार्टिकल है वो रेस्ट में रहना चाहेगा, हमेशा सोचेगा कि रेस्ट में रहें, उसके साथ कोई चेंज ना, परिवर्तन ना हो। तो इस कंडीशन में क्या करेगा, ड्यू टू इनर्शिया वह डस्ट पार्टिकल्स जस्ट फ्लाइजेज अवे, ओके, जस्ट उड़ जाएंगे ना, निकल जाएंगे। तो ये सारे कंडीशन है बेटे, ठीक है। एक उदाहरण हम लोग और ले सकते हैं कि जब कोई पेड़ है उसमें फल लदा हुआ है ना, जस्ट लेडन बाय द फ्रूट्स, और जब हम लोग उसकी शाखाओं को जोर से हिलाते हैं तो क्या होता है, जो फल है वो रेस्ट में है, और जब ही हम उसके ब्रांचेस को हिलाए तो पूरी बॉडी क्या हो गई, मोशन में हम करना चाह रहे हैं, लेकिन जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहेगा, इसलिए ड्यू टू इनर्शिया फल गिर जाते हैं, ठीक है। ये सारे उदाहरण हैं बेटे। इस तरीके से यदि हम बात करें इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में, तो हम इस तरीके से सोच सकते हैं कि यदि हम बस में बैठे हुए हैं, यात्री बस में बैठे हुए हैं, और यदि अचानक बस चल रही है, अचानक उसमें ब्रेक लगा दिया जाए तो क्या होता है, यात्री आगे की ओर जर्क हो जाते हैं। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जब हम मोशन में होते हैं, ठीक है, तो पूरी बॉडी मोशन में हो रही होती है, ठीक है। अल्टीमेटली क्या होता है कि जब बस ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है तो क्या होता है कि जो हमारा जो नीचे का पार्ट है वो तुरंत रेस्ट में आ जाता है, यानी पैर वगैरह जो कांटेक्ट में है बस से वो तुरंत रेस्ट में आ जाता है, लेकिन जो ऊपर का जो पार्ट है वो मोशन में ही रहता है। इससे क्या होता है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन इट जस्ट फॉल्स बैकवर्ड। और यही कारण होता है जो हॉर्स राइडर होते हैं, हॉर्स राइडर यदि राइडिंग कर रहे हैं और ऑटोमेटिकली जब हॉर्स स्टॉप सडनली, what happen, the rider come forward, jerk forward due to inertia of motion, okay. So dear student, there are so many examples are there, you can think about yourself, okay. This is all about the inertia of rest, inertia of motion, and I hope that this two condition are clear to you, okay. Now we are going to discuss some more concept. One thing is inertia of direction is also there, inertia of direction, okay. So inertia of direction is also there, that just you come across inertia of direction. Inertia of direction, what happened under this? Inertia of direction होता है कि the tendency of a body by which it is unable to change the direction of motion, वही सेम चीज़ है, ठीक है। यदि एक डायरेक्शन में कोई बॉडी चल रही है तो उसी डायरेक्शन में चलना चाहेगी, वो अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करना चाहेगी। जैसे यदि हम साइकिल चला रहे हैं और साइकिल चला रहे हैं, बीच में कोई जस्ट मोड़ आ गया जहाँ से घूमना है हमें, तो हम थोड़ा सा टिल्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यदि हम सीधी रेखा में जा रहे हैं, यदि हम सीधे जा रहे हैं, डायरेक्शन सीधी है, तो हमेशा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हम सीधी रेखा में ही जाना चाहेंगे। लेकिन जो ही कोई टर्निंग पॉइंट आ गया तो उस कंडीशन में हमारी जो व्हीकल है, जो साइकिल है, वो थोड़ी झुक जाती है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ओके। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स कम अक्रॉस, ओके।
ओके स्टूडेंट, एक और टॉपिक है, ओके इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बात कर लेते हैं लीनियर मोमेंटम की। लीनियर मोमेंटम की ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटे, लीनियर मोमेंटम। ओके, व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम का मतलब होता है कि इन हिंदी में बात करें तो संवेग। मोमेंटम का मतलब होता है संवेग, यानी जब भी कोई बॉडी, यदि उसके पास स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है ना, तो उसके पास एक फोर्स आ जाता है। वो एक इंस्टेंटेनियस फोर्स उसके पास होता है जब भी कोई बॉडी के पास मोशन में होती है, उसके पास जब वेलोसिटी होती है तो उसके पास क्या होता है बेटे, एक ऑटोमेटिकली एक फोर्स आ जाता है। ठीक है, तो एक कंडीशन हम लेते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी है, उसके पास एक द्रव्यमान है यानी मास है और वेलोसिटी है। ठीक है, तो उसके पास लीनियर मोमेंटम ज़रूर होगा। ठीक है, और यही कंडीशन है कि जब हम बात कर लेते हैं, जैसे मोमेंटम जो डिनोट होता है वो मास इंटू वेलोसिटी से होता है ना। मोमेंटम एक तरह का फोर्स होता है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी के भी पास भी डायरेक्शन है तो ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, यू हैव टू फॉलो इट। ओके, मीन्स मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। जैसे बेटे हम बात कर लेते हैं कि मोमेंटम जो है वो दो चीज़ों पे आधारित होता है, दो चीज़ों पे बेस्ड होता है। इसके दो फैक्टर्स होते हैं, मास एंड वेलोसिटी। जैसे हम लोग वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ जस्ट एनी ट्रक। ओके, एक ट्रक आ रहा है जिसके पास बहुत ज़्यादा मास है। ट्रक के पास तो बहुत ज़्यादा मास होता है, उसका द्रव्यमान तो काफ़ी ज़्यादा होता है, और यदि उसकी स्पीड कम है, ट्रक यदि धीरे धीरे आ रहा है, तो यदि कोई इंसान को यदि धीरे धीरे आता हुआ ट्रक भी यदि टक्कर मार दे, तो स्लो स्पीड से जैसे 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आ रहा है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि धीरे धीरे आता हुआ ट्रक भी यदि किसी इंसान को टक्कर मार दे तो उसकी मौत हो सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस ट्रक का द्रव्यमान ज़्यादा है, उसका मास ज़्यादा है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब समझिए आप लोग। मीन्स इफ़ द मास विल बी ग्रेटर and the speed velocity will be just velocity will low also, just smaller also, then only it can just cause a dangerous injury. Okay, अच्छा अब उदाहरण लेते हैं, वेलोसिटी के बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। और यदि जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि यदि क्रिकेट बॉलर जो बैट्समैन होता है, वो सपोज़ कि यदि वह खेल रहा होता है और अचानक बॉल पे हिट करता है, बॉल का मास तो कम होता है ट्रक से, लेकिन यदि उसकी स्पीड को बढ़ा दी जाए, यदि बहुत तेज़ी से हिट करता है और किसी जस्ट फील्डर के सर पे लग जाए तो भी उसकी मौत हो सकती है। मेरे कहने का मतलब है कि लीनियर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन द टू थिंग्स, मास एज वेल एज द वेलोसिटी। ओके, ultimately I just want to say that the two factors, the mass and velocity, if the mass is increases, then also momentum will increase. If the velocity of any body if you increase, then rather than mass, then momentum will also increase. And if both the mass as well as momentum will increase, then definitely momentum will increase. Okay, so this is what the momentum. Okay, dear student, and this is what about the momentum. So what condition arises? Okay, this is a condition arises. This is Newton's first law of motion, and we will talk
about the Newton's second law of motion. Now just the condition. Okay student, up to this you just follow it. Okay, we will meet in the next video. Thank you.